Hello people, welcome to Prep Elevate. Today is day 6 of 30-day mini RC series. So basically we have taken up an initiative that we'll discuss mini RCs for 30 days before we deep dive into the actual CAT level passages. Okay, so today we are at day 6. What is the topic? Evolution. How Darwin's theory reshaped the perception of life. ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं. Charles Darwin's groundbreaking theory of evolution through natural selection marked a seismic shift in humanity's epistemological framework, fundamentally dismantling entrenched teleological and creationist paradigms. पहला ही सेंटेंस सुपर लेंदी है, lots of difficult words, okay, and even if I try to like break it into smaller chunks and read, what I'll find is there are lots of words which are punched in and it's very difficult to grasp an essence. Do not worry, ऐसे एक्सपीरियंसेस ना आपको एक्चुअल आरसीएस में भी आएंगे जब उसका इंट्रोडक्टरी लाइन ही एकदम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो. और कभी कभी ये एक हमारा दिस इज अ वे ऑफ सिलेक्टिंग आरसीएस कि इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो आगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. बट दिस इज जस्ट अ हाफ बेक्ड प्रोसेस. ऐसे डिसीजंस नहीं लेते हैं एक लाइन के बेसिस पे, नो मैटर हाउ लेंदी इट इज और हाउ डिफिकल्ट इट इज. ओवरऑल एसेंस पे फोकस करते हैं. ठीक है, अभी के लिए तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ ऑल द वर्ड्स, बट नेक्स्ट टाइम भी जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो एक लाइन के बेसिस पे कभी आप डिसाइड मत करना कि आपको आरसी अटेम्प्ट करनी चाहिए या नहीं अटेम्प्ट करनी चाहिए. इट कुड बी वेरी डिसेप्टिव, इट कुड बी वेरी डिसीविंग. ठीक है, ये लाइन का क्या मतलब है? Charles Darwin's groundbreaking theory of evolution. So he is, like he's got that credit for this entire theory of evolution, Mr. Charles Darwin, through natural selection. So this was his theory that species, the entire interaction happens through natural selection, marked a seismic shift. Now ये वाला जो वर्ड है ना सेस्मिक, आपने कहाँ देखा होगा? अगर आपने कभी अर्थक्वेक रिलेटेड न्यूज पढ़ी है उसमें ये वर्ड रहता है सेस्मिक. समथिंग विच शेक्स द surface of the earth. It is so strong. Okay, so anything that shakes the surface of the earth. So basically since we are describing the theory as groundbreaking, that is why ये word यहाँ पे use हुआ है, seismic shift. A shift which is so massive that it shakes the foundation on which the other theories rested. ये इसका metaphorical meaning है. And do not worry about like really नोटिंग डाउन द मीनिंग्स इमीडिएटली. इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पे स्पेस भी नहीं है कि मैं सारी चीज़ों के मीनिंग्स इन डेप्थ लिखूँ. मैं आपको समझाते जाती हूँ. व्हाट आई डू इज आई ट्राई एंड प्रोवाइड द मीनिंग्स टू यू. लेट्स क्रिएट अ वोकैब सीरीज वेयर ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स आई जस्ट कलेक्ट एंड विल डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ ऑल ऑफ दो सो दैट इट इज देयर इन योर मेमोरी फॉर रेफरेंस. तो अभी के लिए आप मेरे साथ बस ओरली इसको समझते जाओ धीरे धीरे. ठीक है, सेस्मिक शिफ्ट इन ह्यूमैनिटीज एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क. अब देखो, एपिस्टेमोलॉजी एक साइकोलॉजी का ब्रांच है. ठीक है, which deals with the origin of knowledge, the nature of knowledge. मतलब आज तक जो भी चीजें हमें पता है वो कैसे पता है. फिलोसफी एंटायर ब्रांच जो है ना वो क्वेश्चन करता है चीजों को. एपिस्टेमोलॉजी भी उसका एक ब्रांच है जो ये हमें बताता है कि जो हमें एक्चुअली पता है वो कहाँ से पता है. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द थियोरी बिहाइंड दिस नॉलेज. ठीक है, सो it caused this theory caused a very massive shift in our understanding, our perception, the framework, that already existing framework, our perception of that framework, fundamentally dismantle करना किसी चीज को होता है टुकड़ों में बांटना, to break things into pieces. Here एक वर्ड में अगर मैं बोलूं shattered. ठीक है, dismantle करना मतलब shatter करना. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, but I'll provide the meanings later also. ठीक है, so you do not have to worry about that. Shattered entrenched teleological and creationist paradigms. Entrenched मतलब deeply ingrained, जो सालों साल से चला आ रहा है. ठीक है, something which is fixed and very difficult to move around, that is entrenched, deeply ingrained. Teleological and creationist paradigms. teleology क्या होती है? टेलियोलॉजी हमें ये बताता है ना, व्हेन वी रीजन बैकवर्ड्स वी लुक एट द एंड एंड देन वी ट्राई एंड रीजन बैकवर्ड्स. जैसे सिंपल, जब कोई भी चीज आपके साथ बुरी होती है ना, आप देखोगे यूजुअली एक्सपीरियंस्ड पीपल और पीपल हु वांट टू कंसोल यू, दे से एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. इसका मतलब
अभी शायद आपको नहीं पता है उसकी रीजनिंग क्या है, बट वो चीज हो चुकी है। तो जो हो चुकी है उसके बेसिस पे आप बैकवर्ड रीजनिंग करते हो, जब आपको एक्चुअली पता लगता है जैसे अच्छा दिस हैपेंड फॉर अ ग्रेटर गुड। वो टेलियोलॉजी का एग्जांपल है कि यू रीजन बैकवर्ड्स, यू लुक एट द एंड एंड देन यू अंडरस्टैंड अच्छा दैट इफ यू रीजन बैकवर्ड दिस इज वेयर द रूट लाइज। सो ये पूरी चीज ना, जो ये जो हमारी थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है, इसने बेसिकली ईयर और एजेस से जो पैराडाइम्स चले आ रहे थे, क्रिएशनिस्ट पैराडाइम, पैराडाइम इज एन आइडिया और अ बिलीफ और अ फ्रेमवर्क। क्रिएशनिस्ट क्या होता है? दिस इज अ बिब्लिकल टर्म एक्चुअली, जहां पे हम मानते हैं दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग और व्हाटएवर एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइन ऑर्डर। सो देर इज अ हायर पावर विच इज ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, ठीक है? तो वो ऑर्केस्ट्रेटेड बाय डिवाइन पावर होता है क्रिएशनिस्ट। वी बिलीव दैट देर इज अ सुप्रीम क्रिएटर, एक बिब्लिकल व्यू है। तो एक ही सेंटेंस में इतने सारे डिफरेंट आइडियाज है, फिलोसफी का भी एक आइडिया है, कुछ बिब्लिकल आइडियाज है, कुछ नॉर्मल डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो डेफिनेटली इट गिव्स यू एन इम्प्रेशन दैट द एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट दैट कुड जस्ट बी वेरी डिसीविंग। अभी तक हमने एक ही लाइन पढ़ा है। सिंप्लीफाई करते हैं, एक लाइन में हमने क्या समझा? इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग्स तो मैंने समझा दिए। आई प्रोवाइड यू विद द रिटन नोट्स फॉर इट सो दैट यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट इट। मीनिंग क्या है कि जैसे ही चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, इट डिसमेंटल्ड द थ्योरी दैट हैड बीन होल्डिंग ऑन फॉर एजेस। तो उसने सबको डिसमेंटल कर दिया और ये जो सारे हमारे टेलियोलॉजिकल और क्रिएशनिस्ट पैराडाइम्स थे, जो आइडियाज थे, उनको शैटर कर दिए। सो वी आर बेसिकली स्टेपिंग इनटू अ न्यूअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो अभी क्या हुआ? बिफोर डार्विन, डोमिनेंट वर्ल्ड व्यूज adhered is followed, adhere to the rules is followed the notion of species as immutable. Immutable is the antonym, reverse of mutable. Mutable is something that is changeable, immutable is जो चेंज नहीं कर सकते। तो पहले हम मानते थे कि जो एक बार क्रिएट हो गया वो हो गया, देयर इज नो चेंज इन फॉर्म, ये पहले का आइडिया था। डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड एंड स्टैटिक इन देयर परफेक्शन, जो एक बारी जैसे क्रिएट हो गया, there could be no changes made to any particular species because everything is controlled by a higher creator and everything is divinely orchestrated, ठीक है? तो हम उसमें से एज स्पीशीज कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो जैसा है वो स्टैटिक है, स्टेशनरी। स्टेशनरी का स्पेलिंग यहाँ पे स्टेशन, STATIONARY। अगर ERY होता तो वो आपके पेंसिल्स, इरेजर्स, वो वाली स्टेशनरी हो जाती। स्टेशनरी यहाँ पे फिक्स्ड, ठीक है? stagnant, fixed. However, on the origin of species introduced a new revolutionary conceptual model. तो उसने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया। ये बुक है चार्ल्स डार्विन की, बहुत ही फेमस, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है? पोजिटिंग, अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो ना, तो पोजिटिंग का मतलब अभी तक आपको पता होगा। टू पोजिट समथिंग इज हाइपोथेसाइज समथिंग और अज्यूम समथिंग और पुट फॉर्थ अ थियरी, ठीक है? व्हाट डिड इट थियराइज? that adaptive variations within species arising through chance mutation could accumulate over successive generations. तो चार्ल्स डार्विन ने ये बोला कि हर कुछ स्टैग्नेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, कि एक बार कोई स्पीशीज किसी तरह से क्रिएट कर दी गई तो उसमें और कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। चेंजेस आर पॉसिबल। एडेप्टिव वेरिएशंस मतलब स्पीशीज को चेंजिंग वेदर कंडीशंस, चेंजिंग सराउंडिंग में जो चेंजेस होते रहते हैं, कंटिन्यूसली खुद को अडेप्ट करना पड़ता है, एंड हेंस देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशंस दैट माइट टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज एंड अराइजिंग थ्रू चांस म्यूटेशंस। मतलब लेट्स से सर्वाइवल के लिए या लेट्स से किसी चीज को विथस्टैंड करने के लिए there are chance, something that happens out of chance, so the changes that are happening in a species, let's say for survival or let's say for any other factor, तो ये mutations possible है and these mutations can accumulate over successive generations। तो एक बार जो generation एक बार आ गया ना आपके DNA में, तो वो successive generation में भी आपको वो changes किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है? enabling organisms to thrive in dynamic ecosystems and in fact चार्ल्स डार्विन ने ये स्टेट किया था कि अगर कोई स्पीशीज अडेप्ट नहीं करती है तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाती है ना। दिस इज बियॉन्ड व्हाट इज रिटन, हाँ, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें चीजें पता होती है वी कैरी दोज आइडियाज, वो एक गलत एक्चुअली अप्रोच है।
कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि चार्ल्स डार्विन की बुक्स में ये आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं. ही फर्मली बिलीव दैट इफ अ स्पीशीज डज नॉट अडेप्ट अल्टीमेटली पेरिश. ठीक है, तो अगर हम अडेप्ट नहीं करें हम पेरिश कर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो ये adaptive variations are important and they happen through chance mutations. They can carry forward through the successive generations also, and it enables organisms to thrive in dynamic ecosystems. इसका मतलब हमारे आसपास का जो environment है ना वो dynamic है, वो change forever changing है, बहुत सारे changes होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं. तो अगर एक species adapt नहीं करेगी ultimately it's going to perish. ठीक है. This inherently probabilistic mechanism of survival, probabilistic mechanism is a system, probability of a species surviving. वो क्या probability है कि एक species survive करेगी, उसके around क्या mechanism है, the mechanism of survival through probability. ठीक है. And reproduction, dislodged is again another better word for dismantled, dislodged, to get away with. एंथ्रोपोसेंट्रिक आइडियोलॉजीज, अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है. ठीक है. एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या होता है? देखो, एंथ्रो इज अ वर्ड फॉर एंथ्रोपोलॉजी इज अ वर्ड दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन काइंड. सो ये वहां से लिया गया है, यहां से डिवाइड कर दो वर्ड को. एंथ्रोपोसेंट्रिक, something or a study that believes, or the idea that believes that human beings are the most powerful species or the most powerful organisms. A study, or let's say an idea that centers around humans, okay, being the most powerful organisms or species on this planet. ठीक है. So it dislodged those beliefs, it dismantled or shattered those beliefs, presenting humans as integral. Yes, they are integral, they are definitely important, yet unexceptional participants in the broader tapestry of life. Definitely humans are important to the ecosystem, but are they the solely most important creations, the most powerful organisms? Maybe not. We are dependent, right? In nature we are dependent on other organisms also for our survival, directly or indirectly. So this entire theory of evolution, or let's say the probabilistic mechanism of survival, it states that it shattered the anthropocentric ideologies that humans are the single most important species, and it provided the idea that they are definitely important, but they are unexceptional, right? They are as ordinary as the other species, and in the broader tapestry of life. अभी देखो, tapestry as a word, it's a woven piece of cloth रहता है, उसको आप डिजाइनिंग करते हो ना, that is tapestry. ठीक है. बट जब ये होता है ना, मेटाफोरिकली ब्रॉडर टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ इज द एंटायर, लेट्स से when you collect all your experiences, memories together, it's known as the tapestry of life. Whatever you've experienced or gone through so far, वो आपकी tapestry होती है. ठीक है. So let's say the entire broader experience of life. तो जब when we look at life as a whole, human beings are not the single most important or significant organisms or species. ठीक है, ये बोला गया. The ramifications is consequences of Darwin's ideas extended far beyond the realm of biology, inciting existential questions within philosophy, destabilizing theological dogmas. Theology is something that is related to a religion, okay, the religious beliefs, the dogmas, and recalibrating मतलब re-evaluating social sciences. तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, इट वेंट बियॉन्ड बायोलॉजी. देयर वाज lot of questions on philosophy which are derived from here, let's say about existentialism, about interdependence of humans on other species, and how do we function together as an ecosystem, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि human beings are the most important,
राइट। वो किसी भी तरह रूल कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। नेचर में सर्वाइव करने के लिए हमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदर स्पीशीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस ना ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से आए हैं, ठीक है। एंड इट डिस्टेबिलाइज्ड, मतलब जो इतना फर्म फाउंडेशन था ना हमारा रिलीजियस और हमारा जो रिलीजियस बिलीफ्स का, उसको उसने डिस्टेबिलाइज कर दिया, उसको हिला दिया, उसके सरफेस को उसने थोड़ा वीक बना दिया कि अच्छा नाउ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग। Why detractors decried his theory? Detractors is opponents, right? People who did not believe in this theory, that detractors. They criticized. Decried is criticized his theory as antithetical to moral and spiritual doctrines. So पहले क्या होता था ना, जो religious leaders होते थे ना, they were supposed to be supremely powerful. उन्होंने जो एक बार अपना opinion दे दिया, that is what the masses had to follow blindly. And science actually appeared as contradictory or an opposing force to these people who were in those religious highly let's say religious positions. तो उन्होंने जो moral spiritual doctrines है, जो principles है, जो उन्होंने एक बार like when they presented it to the masses, उसके अगेंस्ट कुछ वो सुनना नहीं चाहते थे। बट ये थियरी, दैट इज व्हाई इट सीम्ड एंटीथेटिकल टू देम। एंटीथेटिकल इज एन अपोजिंग फोर्स। उन्हें लगा कि जो थियरी प्रेजेंट की गई है वो एक्चुअली ये जो मॉरल और स्पिरिचुअल बिलीफ्स के अगेंस्ट है, ठीक है। सो द डिवाइन क्रिएटर जिसके बारे में हमने बात की थी, उन्होंने जो वैल्यूज या प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। सो दे डिक्राइड और दे क्रिटिसाइज्ड the principles in public, or they offended, or they let's say critiqued it in public, ठीक है। और proponents का क्या रिएक्शन था? Proponents are supporters, celebrated its empirical elegance. Empirical क्या होता है? Empirical theories are proved by examples rather than just theory. तो जो इसको सपोर्ट करते थे उन्हें लगा अच्छा इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस काफी हो सकते हैं। So they celebrated the beauty, the empirical elegance and explanatory power, ठीक है। So दो फोर्सेस हो गए, एक डिट्रैक्टर्स एंड एक प्रोपोनेंट्स। Darwin's legacy endures, compelling humanity to confront its evolving place within an interconnected, ever adaptive natural order. So आज के डेट में डार्विन की जो प्रिंसिपल्स हैं, it has actually become a legacy, right? We all study about it, we try to understand about it, so it's still date, it's there, it's pretty relevant. So it endures and it compels humanity. Compels is forces you to think, forces the entire human species to think about like when everything is ever evolving and connected and ever adaptive, what is your place in this ever adaptive society? How do you adapt to survive? ये questions है, ठीक है। This was definitely difficult in terms of language, in terms of how this entire thing was structured, but idea ही यही है कि हम धीरे धीरे करके कैट लेवल पैसेजेस तक पहुंचे। और ये तो सब एक ही पैराग्राफ था, ऐसे पूरे फुल फ्लेजेड पैसेजेस भी होते हैं जो डेफिनेटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट वेरी एंजॉयबल, ठीक है। बट हर चीज रेलिवेंट नहीं हो सकती ना हमारे लिए। वी नीड टू डेवलप मसल एंड पेशेंस। कुछ भी आए हमें पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। डिफिकल्ट वर्ड्स, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड द मीनिंग्स, ठीक है। उसका आपको वरी नहीं करना है। आई डोंट हैव स्पेस, सो आई डोंट वांट टू मेक इट डर्टी एंड स्क्रिबल इट ऑल ओवर। सो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अलग से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखना, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट। एंड इन फैक्ट आई हैव प्लान्स ऑफ स्टार्टिंग अ सेपरेट वोकैब सीरीज ऑल्सो व्हिच इज कनेक्टेड टू दीज पैसेजेस, सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास, हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे उसको। अभी क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल असर्शन? प्रिंसिपल असर्शन इज अनदर बेटर वर्ड फॉर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। सब किस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे? Darwin's theory refuted the idea, refuted मतलब refused the idea of species as immutable and introduced an adaptive framework. हाँ, यही तो उन्होंने किया था कि पहले थ्योरी था कि immutable है, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो जैसा है फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, स्टैटिक है। But he refused the idea that they are immutable, and he introduced an adaptive framework कि उन्हें continuously species को adapt करना पड़ता है। लग तो सही रहा है, कंपेयर करेंगे। Darwin's ideas provided conclusive evidence for the anthropocentric superiority. No, he went against that. कि humans are single most significant species, उसके against गए थे वो. So he did not provide evidence for it.
ये नहीं है. The theory of natural selection failed to gain acceptance beyond biological sciences. No, it actually opened doors for discussions in philosophy also, not just biology. ठीक है, क्या क्या रंस थे एक बार देख लेते हैं फिर भी. Inciting existential questions within philosophy. ठीक है, so it went beyond biology. ठीक है, ठीक है, तो ये तो गलत है. Teleological explanations of life remain unchallenged despite Darwin's contributions. No, सब चैलेंज हुआ है, तभी तो एक डिफरेंट थियरी बनी है हमारी. ठीक है, और वैसे भी अगर हम प्रिंसिपल असर्शन के बारे में बात करें ना, हम सेंट्रल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहे थे. टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन वाज अ पार्ट ऑफ इट. उससे बेहतर डिस्क्रिप्शन तो ये है कि हमने वो इम्यूटेबल वाले आइडिया को भी शैटर किया और एक एडेप्टिव फ्रेमवर्क को भी हमने इंट्रोड्यूस किया. तो सेंट्रल आइडिया शुड एनकम्पस ऑल द मिनी आइडियाज. ठीक है, और देखो, what does the passage suggest about relationship between Darwin's theory and religious beliefs? क्या रिश्ता था इन लोगों का? Obviously opposing रिश्ता था, right? वो लोग कुछ और बिलीव करते थे, his theory actually opposed that. तो wordings में देखते हैं, Darwin's ideas seamlessly aligned with the principles, theological principles. Seamlessly align हो रहा था क्या? उसके अगेंस्ट जा रहे थे ना, तो seamlessly align तो नहीं हो रहा था. Align is when you are on the same page. The theory undermined traditional creationist ideologies and moral doctrines. Yes, ये किया गया था. ये जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड क्रिएशनिस्ट आइडियाज थे, मॉरल पैराडाइम्स थे, उसके अगेंस्ट गए थे हम. और देखते हैं, Darwin's work was largely irrelevant to religious and spiritual discourses. No, irrelevant नहीं था, impact तो पड़ा था. Aligned नहीं था, but impact पड़ा था. Opposing था, but impact तो पड़ा था. तो ये तो नहीं हो सकता. The implications of Darwin's theory strengthened anthropocentric theological narratives. No, उल्टा, strengthen नहीं किया था, उसके अगेंस्ट गया था कि सिर्फ ह्यूमन ही सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स इंटरकनेक्टेड एंड एवर अडेप्टिव. ठीक है, तो ये सही आंसर है. अभी क्या होता है ना, when we don't know or understand the meanings of certain difficult words, questions के आंसर्स मार्क करने में डिफिकल्टी आती है. लाइक religious beliefs, if I don't know that theology relates to this, तो शायद हमें समझने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी. तो कुछ चीजों का हमें बैकग्राउंड में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि हमारा वोकैब स्ट्रांग हो. आई कीप रिपीटिंग कि वोकैब एज सच आपका डायरेक्टली कैट में टेस्ट नहीं होता है, बट इस तरह से टेस्ट होता है. तो ऐसे पैसेजेस जिसके क्वेश्चंस के आंसर शायद आप दे सकते हो, बट कुछ वर्ड्स की वजह से ना आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हो, तो उसके लिए हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, अभी के लिए जस्ट गो विद द फ्लो. The phrase probabilistic mechanism of survival in the passage refers to what? देखते हैं. The inevitability of species evolution towards perfection. No, इसके बारे में कोई डिस्कशन ऐसा था नहीं. Inevitable is something that is bound to happen. The random occurrence of mutations leading to adaptation over time. Yes. Probabilistic mechanism of survival. If you have to survive, the system through which you survive is adaptation over time. और ये जो randomly ये occur होता है, that is why probability. Probability is a word which is strongly related to random occurrence. अभी जब मैथ्स के वीडियोस आएंगे, आई थिंक प्रोबेबिलिटी वगैरह के वीडियोस बनेंगे, तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएगा. ठीक है, randomly occurring and what is the probability of this happening, that happening. So probabilistic mechanism of survival मतलब जो random occurrence of mutations is again changes leading to adaptations over time. ठीक है, a deterministic process eliminating the role of chance. No, we can't eliminate the role of chance in evolution. chance के वजह से ही तो है, ये पूरी थ्योरी तो chance पे ही है, probability पे है. ठीक है, the static nature of ecosystem, यहीं पे आपको समझ में आना चाहिए गलत है, because it refers to changes. ठीक है, static नहीं है, it refers to changes, mutability in shaping evolutionary outcomes. तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी. ठीक है, so this was it for today's passage and the discussions that we associated discussions. I hope you had a good time, you understood stuff,
and I'll keep coming back with other videos. Thank you so much for tuning in, and I'll see you.